Good morning, everyone, and welcome to this event of the release of Good Clinical Practice Guidelines Handbook and the prospectus for the fellowship program for the international students from the National Board of Examinations. It is our great privilege to welcome our chief guest, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan. सबकी जरूरत नहीं है। ये सब क्या है, आजकल कोरोना युग में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। I request our Vice Presidents, Dr. Shivakant Mishra and Dr. D.K. Sharma to please felicitate the Honorable Minister of State, Dr. Chaudhary. Mr. Chaudhary. I request Dr. Shishta Nada Basu and Dr. Basu to please felicitate Madam Secretary Health, Preeti Sudan, Madam. Thank you so much. अच्छा कलर डिफरेंट है भाई, इसमें जेंडर सेंसिटिविटी है। Thank you. I request Dr. Ajay Kumar, our member governing body, and Dr. Rakesh Sharma to please felicitate Shri Rajesh Bhushan ji, OST Health. Sir. Thank you very much. Sir, very briefly about the two books on behalf of the National Board and on behalf of Dr. Abhijat Seth, President of the National Board of Examinations, who was not able to attend this function today due to his mother's illness, and he could not travel here, sir. I welcome all the dignitaries to this release function of these two books. The Good Clinical Practice Guidelines Handbook is an attempt to provide the guiding points to all the DNB candidates on the principles of ethical and professional conduct during their DNB training, sir. And this is a first-time initiative from any institution or any body in the country. And the second booklet, sir, which is presented to you for release, is the International Fellowship Program that is being launched for international students for post-MD, MS fellowship training in 11 subjects over 42 prestigious institutions of the country. And this would be through a fellowship entrance test. It will be open to all international candidates from SAARC countries as well as non-SAARC countries. And this is the first initiative, sir, which would put India on a global map. So with that, sir, I would request our Secretary, Madam, Preeti Sudan, Madam, to please say a few words. Our Honorable Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan ji, our Honorable MOS Chaube sir. I would like to also say hello to Dr. Abhijit Seth in his absentia, please convey, and Dr. Lal, and the Vice President, Dr. Shivakant Mishra, Dr. D.K. Sharma, all the colleagues that are here, and Rajesh Bhushan, of course. I would say he's my twin these days. First of all, happy Doctor's Day to all of you. And I think I am unable to actually express my gratitude and my sincere thanks for all the services that doctors are actually giving in this very difficult time. And it just goes to show that how much I am always reminded of that, because my sister is also a doctor of the Hippocrates oath, sir, where with ethics doctors are supposed to perform selfless service, and thank you for that. And we, of course, has come a long way since 1975, and as we know, with the evolving scenario, we hope that not only the
DNB degree, but you will be giving diplomas also. I will not be here, but I will be watching you very closely. Thank you. So we look forward to today's release, and thank you. Thank you all. Thank you so much, ma'am. Thank you for your kind words and words of appreciation. I'll now request our Honorable Union Minister of State, Shri Ashwin Kumar Chaubey ji, to say a few words to the guests. हमारे सचिव श्रीमती प्रीति सुडान जी, OSD श्री राजेश भूषण जी, और यहाँ के जो हमारे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर श्रीकांत मिश्रा जी, डॉक्टर DK शर्मा और सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, जहाँ तक बहुत श्रद्धा की बात है कि आज भारत के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो अभी कुछ पुस्तिका का विमोचन भी हुआ, और जैसा कि हम जानते हैं कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। राष्ट्रीय परिवेश में सबसे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि जिस निस्वार्थ भाव से और पूरे समर्पण के साथ पूरी स्वास्थ्य क्षेत्र की देखभाल करने का जो दायित्व देश के तमाम चिकित्सकों ने निर्वहन किया है, मैं उनके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ऐसे चिकित्सकों के प्रति और चिकित्सा कर्मियों के प्रति कोविड-19 के इस कालखंड में जो उनकी भूमिका रही है, वो देश और दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर को बेहतरीन डॉक्टर देश को देने का एक अच्छा संस्था है, एक अच्छी संस्था है। और हम ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छात्रों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम एवं गुड क्लिनिक प्रैक्टिस गाइडलाइंस, ये इसके शुभारंभ का जो आज मौका पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, और किसी कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो नहीं आ पाए, और बहुत सारे चिर परिचित हम सब लोगों के यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, तो निश्चित रूप में हमारे लिए आज बड़ा ही गौरव का विषय है। और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने जो एक मानक तय किया है, जिससे बोर्ड की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति और उपलब्धियाँ हुई है, इसे हमें आगे भी भविष्य में बनाए रखना है। इसका ध्यान हम सब लोगों ने रखा है। हम जानते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में चिकित्सकों का बहुत ही विशेष स्थान रहा है। महान चरक से लेकर के आज जिनका जन्मदिन है, डॉक्टर विधान चंद्र जी, उनके जन्मदिन पर हम श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित करते हैं। और साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में जो आज मनाया जा रहा है, आदिकाल से इस महान परंपरा जो चली आ रही, इस परंपरा को बनाए रखने का दायित्व हम सभी चिकित्सकों पर भी भली भांति है। हमारे मेडिकल कॉलेज में जो हमारे प्रोफेसर और हम सब लोग हैं, इसकी चिंता और इसको ख्याल बराबर करते रहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय का जो उद्देश्य है, और हम सभी जानते हैं कि 2017 में जो हमारी स्वास्थ्य नीति बनी, उनके मार्गदर्शन में और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके नेतृत्व में सर्वे संतु निरामया, यह हमारे स्वास्थ्य नीति का अवधारणा है। सभी स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सस्ती हो, सुलभ हो, सबके लिए सुखदायी हो। तो इस प्रकार के स्वास्थ्य नीति का जो उद्देश्य हमारा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे इस कोविड के कालखंड में भी हमारे चिकित्सा कर्मी, प्रशासन के अन्य लोग, मुझे लगता है दिन रात मेहनत करके लोगों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। आज दूसरे देशों की तुलना में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनके परिपक्व नेतृत्व का एक जीता जागता उदाहरण है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने अपने प्रतिष्ठा के अनुरूप बेहतर चिकित्सीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने प्रदान करने का कार्य किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा छात्रों को शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप की शुरुआत भी की जा रही है, जो अत्यंत ही हर्ष एवं गौरव की बात है।
एक चिकित्सक और मरीज का रिश्ता विश्वास का रिश्ता होता है। आज के दिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर आज हम इन सब बातों की चर्चा करते रहे हैं और उनकी महत्ता को हम सभी जानते हैं। चिकित्सा प्रशिक्षा के दौरान विशेष करके चिकित्सा छात्रों को मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने की निरंतर प्रयास करना चाहिए और साथ ही चिकित्सक भूलोक के भगवान के रूप में भी माने जाते हैं। जहाँ लोग कहते हैं कि ऊपर भगवान है और नीचे चिकित्सक के रूप में एक दूसरे भगवान की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। मैं चाहूँगा कि इस रिश्ते को, इस अटूट विश्वास को कायम बनाए रखें चिकित्सा जगत के लोग, और अपने चिकित्सीय प्रशिक्षण के दौरान इस पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रता द्वाम मापनोति धना धर्म ततः सुखम। उससे बड़ी सुख कुछ नहीं होती है, विद्या विनय देती है। और मुझे लगता है कि मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। आपके शुभकामनाएं और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, we are ready for the release. There are 2 forms of books are being released, sir, the electronic format and the physical format. And I'm very pleased to say, sir, that the guidelines book was prepared by the Professional Development Committee, and Dr. Mrs. Nadda and Mrs. Basu and Dr. Basu have significantly contributed, and they are present today. We must acknowledge the input they gave for the and the contribution to the good clinical practices guidelines. So, sir, if with the press of the button you can release the good clinical practice guidelines, number 1. So it gives broadly on all aspects of care that we need to instill in our young students. Thank you very much, sir. You could release the prospectus for the international fellowship. Video. Thank you very much, sir. I would now request our Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, respected Dr. Harshvardhan ji, to please address us on the occasion of this release. My colleague Shri Ashwini Chaube ji, Madam Preeti Sudan ji, Rajesh Bhushan ji,
The two vice presidents of the National Board of Examinations, Dr. Mishra and Dr. Sharma, Dr. Mrs. Nadda, Dr. Lal, Dr. Ajay, Dr. Basu, Dr. Rakesh Sharma, and all others who are helping us in the organization of this program here, our media friends. Well, it's a very, very important day. 1 जुलाई हमारे जैसे डॉक्टर्स की ज़िंदगी में इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म दिवस भी है और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई थी। और किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल के लिए डॉक्टर बीसी रॉय से बड़ा कोई आइकॉन नहीं हो सकता। उनका पॉलिटिकल लाइफ देखा जाए तो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ देखी जाए तो, ऐसे एजुकेशनिस्ट उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो, ऐसे फ्रीडम फाइटर उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो, और एज प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर मैनी ईयर्स, एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर मैनी ईयर्स, सेल्फलेस डेडिकेटेड डॉक्टर। और शायद ये हम सब जानते हैं कि इस दिन को डॉक्टर्स डे के नाम से डेडिकेट भी उन्हीं के लाइफ से प्रेरणा लेके किया गया जिस समय पे भी। और मैं भी देख रहा था कि ये जो खासकर हमारा फेलोशिप प्रोग्राम आज शुरू हुआ है, जिसकी प्रोस्पेक्टस बनाई गई है, जो लगभग 11 स्पेशलिटीज़, 42 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, सारे आपके सार्क वगैरह के कंट्रीज़ और वो सब में, यानी अभी तक हम लोगों को बाहर फेलोशिप लेने के लिए, और उसमें भी ये आज का मूवमेंट आपने जो आज 1 जुलाई चुना, ये एप्ट इसलिए है कि डॉक्टर बीसी रॉय, उन्होंने पढ़ाई अपनी की भारत में, उसके बाद जब उन्होंने इंग्लैंड में अप्लाई किया तो उनको पहली बार रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो एशियन थे। उन्होंने फिर एप्लीकेशन दिया, फिर रिजेक्ट किया। और ऐसा शायद पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं होगा कि कोई डॉक्टर किसी देश में किसी इंस्टीट्यूशन में 30 बार अप्लाई करे। 30 टाइम्स डॉक्टर बीसी रॉय अप्लाइड एंड his application was rejected 30 times because he was an Asian। लेकिन 30 बार के बाद जो है उनकी एप्लीकेशन को वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। एंड ही इज़ प्रोबेबली द ओनली डॉक्टर, और भी होंगे मेरे ख्याल से, बट एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट देम, जो कि उसके फेलो हैं, इसके रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के भी मेंबर हैं, फेलो हैं, और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के भी फेलो हैं। और उनकी जो एजुकेशनल हिस्ट्री भी आप देखें तो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मैथमेटिक्स करने के बाद दोनों जगह अप्लाई किया है। मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अप्लाई किया है। एंड ही सेलेक्टेड टू वर्क इन ए, मतलब चूज़ टू वर्क इन ए, मतलब स्टडी इन ए मेडिकल कॉलेज। बहुत उनका लाइफ जो है बहुत ही प्रेरणादायक है। कैसे एथिकल तरीके से निस्वार्थ उन्होंने मरीज़ों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, ऐसे पॉलिटिशियन एंड ऐसे चीफ मिनिस्टर ऑफ सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल 13-14 साल तक उन्होंने, और एकदम अनब्लेमिश्ड मेरे ख्याल से उनका कैरियर है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो उस ज़माने के अंदर, मतलब उसकी भी कितनी बड़ी प्रेस्टीज होती थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम लोग बहुत रिस्पेक्ट से लेते थे, नॉट लाइक आज की तरह से। लेकिन उन्होंने जो है वो जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी बहुत बड़ा नाम दिया। तो आज का दिन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको हम, आपने इस फंक्शन को आज किया, मुझे इस बात की विशेष रूप से खुशी है। और विशेष रूप से फेलोशिप हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शुरू कर रहा है विदेश के लोगों के लिए। भारत के डॉक्टरों ने पहले ही खाली भारत में ही नहीं सारी दुनिया में प्रतिष्ठा कमाई है।
मैं बाकी दुनिया का तो जानता नहीं, लेकिन मैंने अमेरिका में और इंग्लैंड में खासकर बहुत नज़दीक से देखा है कि भारत के डॉक्टरों की जो वहाँ पर प्रतिभा है उसका कितना बड़ा सम्मान होता है। वहाँ जब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन का फंक्शन होता है तो वहाँ उसमें अमेरिका के बड़े बड़े लोग शिरकत करते हैं, किस तरह की रिस्पेक्ट देते हैं। और ब्रिटेन में भी जो है हम सब जानते हैं कि वहाँ की मेडिकल सर्विसेज में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है भारत के डॉक्टरों का है। तो ये आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो प्रतिष्ठा हमारे पास ऑलरेडी है उसको एक प्रकार से औपचारिक प्लेटफॉर्म पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम उसका स्थापित होगा कि बाहर के लोगों को भी जो है या हमारे देश में फेलोशिप करने की सुविधा होगी। और वो फेलोशिप ऐसे नहीं मिलेगी, उस फेलोशिप का कोर्स करने के लिए भी एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में उसको क्वालिटी के पैरामीटर्स को जो है एक तरह से फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो अपने आप में ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा जो आपने ये क्लिनिकल और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेडिकल एथिक्स और जो अभी मैडम ने भी बात किया हिपोक्रेटिक ओथ का, ये सब हम लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में हिपोक्रेटिक ओथ की बात होती थी। मेरे मेडिकल कॉलेज में तो मेरे अल्मा मेटर में मेडिकल कॉलेज में घुसते ही सबसे पहले बहुत बड़ा जो है हिपोक्रेटिक ओथ जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि दूर से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि समय के साथ शायद हिपोक्रेटिक ओथ की बात भी होती है। और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो मोदी की किताब है उसमें हम सब जानते हैं कि मेडिकल एथिक्स के ऊपर एक फुल फ्लेजेड चैप्टर है जो बहुत डिटेल में हर एक कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन शायद जिस प्रकार से उसकी चर्चा आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, 50 साल पहले शायद मेडिकल कॉलेजेस में होती थी, जो हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था, आज वो शायद कहीं ना कहीं लोग वो विषय को ही भूल गए हैं। तो उस नाते अभी ये भी थोड़ा बहुत चैलेंज ज़रूर हो गया है कि जो भावना से हम लोग हमारे बचपन में डॉक्टर के पास जाते थे, अब उस भावना से हमारा मरीज़ हमारे पास नहीं आता। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोफेशन में भी कमियां आई हैं। लेकिन जो डॉक्टरों के जो स्वभाव में और जो उनके एक प्रकार से डीएनए में जो इनहेरेंट जो स्पिरिट है वो एकदम गुडनेस वाली है, वो नोबिलिटी की है। और उसको एक प्रकार से जागृत रखना, अक्षुण्ण रखना, जीवित रखना, उनको समय समय पर उनका दायित्व उसको किस तरह निर्वाह करना है उसका स्मरण कराते रहना, उनको एथिक्स के बारे में भी ध्यान दिलाते रहना। और जो खासकर ये जो एनबीई की तरफ से जो पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स चलता है, 82 डिसिप्लिन्स में चलता है, 29 ब्रॉड स्पेशलिटीज़ में चलता है, 30 सुपर स्पेशलिटीज़ में और 23 सब स्पेशलिटीज़ में चलता है, 703 इंस्टीट्यूशंस में। और अभी इसका बहुत बड़ा विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके लिए अभी हम लोगों ने डिस्कशन करके अप्रूवल्स दिए हैं, जिसके फॉलोअप के बारे में अभी मैडम ने भी बातचीत की है। तो ये अपने आप में बहुत हिस्टोरिक है। तो मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा ना कहूँगा, लेकिन ये कामना करूँगा कि ये हमारा जो स्वप्न है, जो इसके पीछे की जो प्रैक्टिकल क्लिनिकल गाइडलाइंस, गुड क्लिनिकल गाइडलाइंस और प्रैक्टिकल बात की है, और उसमें डॉक्टर साहब ने और बताया गया जैसा बहुत मेहनत की है उनकी टीम ने, सब ने। आई थिंक दिस शुड, हमारा ये भी प्रयास रहना चाहिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसको गहराई और गंभीरता से डॉक्टर लोग उसको पढ़ें भी, ये खाली एक डॉक्यूमेंट ना बनकर रह जाए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भाई डॉक्टर बनना जो है ये एक प्रकार से भगवान का असीम कृपा, भगवान का असीम आशीर्वाद, और ये डॉक्टरी का पेशा ऐसा है जो 2 in 1 है। आप अपनी रोज़ी रोटी भी करते हैं और मानवता की सेवा भी करते हैं। तो ये आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये आपका सौभाग्य है डॉक्टर बनना। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बनना ये एक चैलेंज है, जिसको हमको सबको जो है डॉक्टर कम्युनिटी को भी अप्रिशिएट कराना है कि डॉक्टर बन गए हो,
ये हो सकता है तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा, तुम्हारे माता पिता की तपस्या का परिणाम होगा और भगवान की कृपा का परिणाम होगा या तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे कामों का परिणाम होगा। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी एक्चुअल में अच्छा डॉक्टर बनना ये एक चुनौती है और इस चुनौती को सफलतापूर्वक इसका सामना करके एक अच्छा डॉक्टर बनना, इसके लिए जो कुछ उनको समय समय पर करना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, अपनी प्रैक्टिस में लाना आवश्यक है, उसका स्मरण ये प्रक्रिया करेगी। और मैं ये मानता हूँ ये प्रक्रिया यहाँ ही नहीं शुरू होकर ख़त्म होनी चाहिए। ये इसकी जो राजेश जी इसका जो आगे विस्तार है ये आने वाले समय में, वैसे तो नेशनल मेडिकल कमीशन के आगे भविष्य की योजनाओं में मेडिकल एथिक्स और ये मेडिकल बिहेवियर, कंडक्ट, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखने के बारे में बातचीत की गई है। लेकिन इसको ढंग से हम और ज़्यादा कैसे एक बड़ा आंदोलन बनाएं ताकि जो प्रोफेशन की कहीं ना कहीं खोई हुई या कमज़ोर हुई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा है वो दोबारा से रीस्टोर हो। और डॉक्टर बीसी रॉय के बर्थडे पर मुझे लगता है कि ये संकल्प लेना ही हम सब के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज़र्स हैं, हम लोग अभी रूटीन स्थान पर नहीं हैं, हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस में हैं, तो हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं प्रोफेशन से और जो प्रोफेशन में सिस्टम है उसमें जो भी खामियां हैं या कमियां भी हैं उनको भी हम लोग ठीक से डायग्नोज करें और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश करें। तो बहुत बधाई है सब एनबीई के सभी आप लोगों को और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अपने स्टैंडर्ड्स को और बेहतर करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे और जितना भी इसका विस्तार है देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सफलतापूर्वक करेंगे। आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं हैं, उनकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं उन्हें कन्वे करिएगा कि हम लोगों ने सबने उनकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। Thank you so much, sir, for your words of encouragement. It was the dream of our president to see this book, and just that he is not there today, but members of the board and all the team have made it a reality, sir. So thank you, and we will strive to achieve the things that you have encouraged us, and we will make sure that every student receives the e-book, as well as the new entrants will get both the physical copy as well, and we will make sure that it is carried out in letter and spirit. With that, sir, Share it with MCI also. yes, ma'am, we will do that. Thank you, ma'am. देखिए, आज का दिन सब डॉक्टरों के लिए बहुत ही प्रेरणा वाला दिन है। डॉक्टर्स के लिए जो आइकॉन है, आइडियल है, आदर्श है, ऐसे डॉक्टर बीसी रॉय का आज जन्म दिवस भी है और उनकी मृत्यु भी आज ही के दिन हुई थी। सारे मेडिकल प्रोफेशन के लिए आज का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में रखा गया। डॉक्टर बीसी रॉय की पवित्र स्मृति को प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए। डॉक्टर बीसी रॉय एक विख्यात एजुकेशनिस्ट थे, एक अत्यंत संवेदनशील मानवतावादी डॉक्टर थे, एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे, फ्रीडम फाइटर थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के वर्षों तक अध्यक्ष रहे और उन्होंने सारे देश का नाम, मेडिकल प्रोफेशन का नाम दुनिया के अंदर जो है आगे बढ़ाया। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर, डॉक्टर्स डे के अवसर पर हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस की तरफ से 2 चीज़ों को रिलीज़ करने का मुझे मौका मिला है। पहली बार विदेश के लोगों के लिए भारत के अंदर फेलोशिप का प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद फेलोशिप जो है, और ये फेलोशिप भी बहुत सारी, यानी कि लगभग 11 स्पेशलिटीज़ में देश के 42 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये शुरू की जा रही है।
जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, आप जानते हैं कि वो हमारी बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, उनके कोर्सेज़ के करिकुलम बनाए जाते हैं और लगभग 82 डिसिप्लिन्स के अंदर, जिसमें 29 ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हैं, लगभग 30 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं और 23 सब स्पेशलिटीज़ हैं और 703 देश के इंस्टीट्यूशंस में ये हमारा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस की तरफ से ये पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ होते हैं। इसको भी आगे आने वाले समय में हम बहुत विस्तार देने वाले हैं। इसमें जुड़ने वाले बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उनको मेडिकल एथिक्स, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट उनको अपनाना चाहिए अपने मरीज़ों से, क्लिनिकली उनको किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको NBE ने बनाया है, उसको हमने आज रिलीज़ किया है। और इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल फेलोशिप भारत शुरू कर रहा है मेडिकल फील्ड में, उसका प्रॉस्पेक्टस, उसकी डिटेल्ड जो सारी जानकारियां हैं, उसको भी आज मुझे रिलीज़ करने का मौका मिला है। डॉक्टर BC रॉय को आज शायद इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी, क्योंकि डॉक्टर BC रॉय वो शख्सियत हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर वो एक ही समय में जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स है, दोनों के वो मेंबर और फेलो रहे। और उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जब पहली बार अप्लाई किया था इसके लिए, तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। 30 बार उन्होंने अप्लाई किया, 30 टाइम्स, और 30 टाइम्स रिजेक्ट होने के बाद उसको एक्सेप्ट किया गया था। और रिजेक्ट केवल इसलिए होता था क्योंकि वो एशियन है। आज मैं समझता हूँ कि भारत ही ऐसे फेलोशिप के कोर्सेज़ को उनके जन्मदिवस के अवसर पर स्टार्ट कर रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे भारत के लोगों के लिए और डॉक्टरों के लिए नहीं हो सकती। कौन सा डॉक्टर हैं सर इस कोविड पेंडेमिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए क्या? मैं हृदय की गहराइयों से उनको बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैंने तो उनका नाम ही कोरोना वॉरियर्स दिया था और मैं समझता हूँ कि शायद भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है डॉक्टरों को, लेकिन भगवान के दूसरे रूप के अंदर उनको काम करते हुए देश के लोगों ने, शायद दुनिया के लोगों ने पहली बार इस तरीके से देखा होगा, जब अपने प्राणों को भी खतरे में डालकर और हमारे कोविड वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स और दूसरे हमारे स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं। कितने सारे लोगों के प्राण भी न्यौछावर हो गए हैं, लेकिन जज्बे के अंदर कोई कमी नहीं आई है। मैं सभी डॉक्टर्स को आज के इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके स्वास्थ्य की और बेहतर उनके कैरियर की कामना करता हूं। भगवान से उनके लिए प्रार्थना करता हूं।